हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड नाम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है ऑन दिस फोर्थ सेशन ऑन कॉन्ट, that is quant aptitude, and here we are bringing the second module on set theory. In the first module we discussed basics of set theory. Yes or no? You remember that? You have gone through the entire video where we discussed about representation of sets, कैसे represent करते हैं. We also talked about types of sets. We also talked about subsets, power sets, and we also talked about some operations of the sets. I'm going to revise some aspect of operation of sets. That is what we will be covering in this particular module. Then we are going to talk about the application of those, you can say, application of rules of set theory on two, you can say, sets, 3 sets, 4 sets. Primarily we'll be working with Venn diagrams. ठीक है, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस इस Venn diagram से होते हैं, and I'm sure all of you are aware कि भैया Venn diagram is one of the very important part in the examination. ठीक है, IIM के एग्जामिनेशन के अंदर ये बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं. ठीक है, ऑन एन एवरेज इतने सालों में आप देखे होंगे कि हर एग्जाम में एक या 2 क्वेश्चंस होते ही होते हैं. इनफैक्ट इसका यूटिलिटी इन अ सेक्शन कॉल्ड लॉजिकल रीजनिंग इज आल्सो वेरी हाई. ठीक है, एट द सेम टाइम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ वेन डायग्राम, दैट इज minima and maxima of the given Venn diagram. That's one of the most challenging part. ठीक है, and I'm going to, you can say, declutter it, trying to, you can say, help you कि भैया कैसे आगे बढ़े. चलिए, let's start to understand the operations of these sets. We all understand operation of sets. हमने इसके बारे में काफी बातें करी थी. ठीक है, so we understand what are the major operations on the sets. What are the major operations on the sets? We know, you can say, union and intersection. Okay, so we know union and intersection. So let me start with laws of, you can say, the algebra of sets. क्या करेंगे हम? Laws of algebra of sets. That is what we are starting with. That is first called A union B, may also stands for B union A. We have understood A union B stands for A or B, है ना. हमने देखा था it is A or B. हमने ऐसा भी देखा था कि भैया A union B stands for all of them. Okay, great. That is very important. Similarly, the second part called A intersection B is nothing but B intersection A. A intersection B stands for A and B. Okay, so in the Venn diagram scenario, we understood A union B is ये पूरा, A intersection B is ये बीच वाला part. ठीक है ना? That is wonderful. Okay, so that is commutative property. क्या बोलते हैं इसको? Commutative property. I'm sure you know this commutative property in many, you can say, the mathematical operations. Similarly, we have associative property, which stands for A union B. Union C stands for A union B union C. ठीक है, that is also possible. Similarly, we have A intersection B intersection C is nothing but A intersection B intersection C. कॉमन सेंसिकल पार्ट है, आप इसको समझ सकते हैं. ठीक है, आपको आना चाहिए ये बातें. ठीक है, सो आई एम श्योर इट इज, है ना, एसोसिएटिव, है ना. ठीक है, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट व्हिच इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव इज A union B intersection C is nothing but A union B intersection A union C. ठीक है, this is known as distributive property. ठीक है, similarly I can do the same stuff. A intersection B union C is nothing but A intersection B union, ठीक है, A intersection C. ठीक है, this is known as distributive property. ठीक है, this is known as distributive प्रॉपर्टी. ठीक है, अब आपको इसके साथ एक बड़ा महत्वपूर्ण लॉ आपने कभी सीखा होगा, विच इज पॉपुलरली नोन एज डी मॉर्गन्स लॉ. ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? डी मॉर्गन्स लॉ. ऑल ऑफ यू आर पॉसिबली अवेयर अबाउट इट, कभी भी आपने कभी सीखा होगा. ठीक है, सो डी मॉर्गन्स लॉ वर्क्स विद दिस. ठीक है, विच वर्क्स विद कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल लेट अस से आई हैव ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. ठीक है,
तो उसका क्या मतलब हुआ, समझे? इसका यह मतलब हुआ, अगर मैं वेन डायग्राम में बात करूं, ठीक है, तो आई हैव दिस ए बी, सो आई नो व्हाट इज ए यूनियन बी. माई ए यूनियन बी इज नथिंग बट ये पूरा रीजन, ठीक है. और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि दिस इज, यू कैन से, उसका डैश विच इज उसका कॉम्प्लीमेंट, विच मीन्स आई एम लुकिंग एट ऑल दिस रीजन, ठीक है. उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ऑल दिस रीजन, ठीक है ना. ये समझ में आता है दोस्तों. ये बिल्कुल अभी नोट करिएगा, बिकॉज आई विल बी नीडिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन व्हेन आई एम गोइंग टू मेक सम गुड क्वालिटी क्वेश्चंस, ठीक है. तो उसका अगला वर्जन अगर कोई बोले कि भैया इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इज ए कॉम्प्लीमेंट, है ना, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है. आप देख सकते हैं, अगर मैं उसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट करूं, वापस सेम चीज, ठीक है. सो फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज B, and I will draw, you can say, A complement, as in A complement मतलब A के बाहर की बात है, जिसमें ये थोड़ा B पार्ट भी आ जाएगा. दिस इज A complement, ठीक है, बराबर है. दिस इज नोन एज A complement. Now what is B complement? Let me draw B complement, है ना. B complement is B के बाहर की बात है, ठीक है. और हमें चाहिए दोनों का इंटरसेक्शन. तो आप देख सकते हैं, ठीक है, अभी कुछ मजेदार सिचुएशन यहां पे क्रिएट हो सकती है. बी के बाहर की बात है. अच्छा, मजेदार चीज तो कोई हुई नहीं, क्योंकि हाँ अभी कुछ हुआ, कुछ मजेदार, ठीक है. कलर उसके ऊपर आना चाहिए था, ठीक है. सो अब दोनों का इंटरसेक्शन अगर मैं देखूं, है ना, तो दोनों का इंटरसेक्शन अगर देखूं, सो दोनों में कॉमन एरिया कौन सा होगा? सो दोनों में कॉमन एरिया होगा ये वाला, ठीक है. सो आई एम श्योर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है. दैट्स अ डी मॉर्गन्स लॉ, दैट इज अबाउट यूनियन. सिमिलरली डी मॉर्गन्स लॉ वर्क्स विथ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, विच स्टैंड्स फॉर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है. इसको आप नोट करना, दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल, जिसको मैं आगे जरूरत पड़ने वाला है, ठीक है. आई एम गोइंग टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर फ्रंट, ठीक है. आप इसको आसानी से कर पाएंगे. देन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम कार्डिनल नंबर्स. क्या बात करेंगे हम? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स. हम बात करेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स, ठीक है. बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो यहाँ पे ध्यान देनी पड़ती है. सो आई हैव मेड सम नोट्स फॉर यू एंड दोज नोट्स आई एम जस्ट, यू कैन से, प्रोवाइडिंग टू यू, ठीक है. दैट्स अ वेरी सिंपल स्टफ. कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स विच मीन्स भाई जितने भी सेट्स जो फाइनाइट सेट्स है, उसके फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नोन एज कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स, ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल इट इज प्रेजेंटेड एन ऑफ ए, which means number of elements in set A, ठीक है. n of B, which means number of elements in B, okay. so वहां से एक मजेदार सी फॉर्मूला निकलती है for two sets, which is known as n of, that is cardinal number of A union B is nothing but n of A plus n of B minus n of A intersection B, ठीक है. इसको आप थोड़ा सा नोट करें, ठीक है. इसको हम अगर अच्छी तरीके से प्रेजेंट करें इस बात को, सो व्हाट आर वी गेटिंग हियर इज दिस. फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज यूनिवर्सल सेट. आई हैव दिस इज ए एंड दिस इज बी, ओके, ठीक है. नाउ लेट अस से सेट ए हैज एलिमेंट्स एज 1 2 3 4 एंड सेट बी हैज एलिमेंट्स एज 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है. सो व्हाट हैपेंस हियर? इट इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है ना. तो अगर मैं उसका यूनियन करूंगा, सो व्हाट हैपेंस इन, यू कैन से, ए यूनियन बी. ए यूनियन बी स्टैंड्स फॉर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है. ये उसका यूनियन होगा. आप समझ सकते हैं कि ये जो 3 और 4 जो दोनों में कॉमन था, which is nothing but A intersection B, which is 3 and 4, जो you can say मैंने जब उसका कार्डिनल नंबर का कैलकुलेशन किया, so I got number of elements here as 4, I got number of elements here NB as, you can say,
5 पर ये जो दोनों के कॉमन थे, जो मैंने दोनों में एक एक बार काउंट कर दिया, 2 बार काउंट कर दिया, आई हैव टू रिमूव देम, सो देयर बाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स वुड बी 5 + 4 - 2, दैट इज 9 - 2 विच इज 7. ठीक है, सो दैट इज हाउ दी कार्डिनल नंबर का दुनिया वर्क्स. आई होप इट इज वेरी क्लियर. ग्रेट. ठीक है, ऑन द सेम लाइन if I work with 3 sets, ठीक है, which is something like this: universal set, this is A, this is B, this is C. ठीक है, so cardinal number of the A union B union C will be presented as n of A plus n of B plus n of C minus n of A intersection B minus n of B intersection C minus n of C intersection A plus n of A intersection B intersection C. ठीक है, ऐसे काम करेगा. ठीक है, अब आप यहाँ पे मैं इन सब एरिया को अलग अलग तरीके से एक इनसे नाम दे देता हूँ. लेट अस से दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, E, F, N, G. ठीक है, so if I convert this into some language, समझना, this is where the main game is. ठीक है, आपकी सेट थ्योरी की एग्जामिनेशन के अंदर सबसे क्रूशियल पार्ट है आप इस लैंग्वेज को पकड़े. अगर आप ये लैंग्वेज पकड़ पाए ना, ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन बहुत तेज हो जाएगा. ठीक है ना, चलो बढ़िया. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट अस से आई एम एज्यूमिंग दैट सेट ए, सेट बी एंड सेट सी का मतलब है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स passed in set A, number of students passed in set B, and number of students passed in set C or in the subject C. So ABC are the subjects, for example, and the Venn diagram talks about number of students who passed in these subjects. ठीक है, so ये ABCDEFG है और ये थोड़ा बाहर H लगा दिया. Now what is the meaning of H? H क्या है? ये तीन जो सर्कल है वो बात करें कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन दिस 3 सब्जेक्ट्स. ठीक है, सम और द अदर वे दे आर पास्ड इन ईदर 1 सब्जेक्ट और दे आर पास्ड इन 2 सब्जेक्ट्स और दे आर पास्ड इन ऑल 3. सो व्हाट इज H? H is number of students who have not passed in any of the subjects. ठीक है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट पास इन एनी ऑफ दिस, मतलब द स्टूडेंट्स हु हैव बीन फेल्ड इन ऑल 3. ठीक है, सो इफ आई हैव टू राइट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन ऑल 3 subjects will be H. सही बात है, दैट इज नंबर 1. नंबर 2, बड़े ध्यान से देखना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन सब्जेक्ट A. नाउ दैट इज गिवन एज ABDE. नोट करना, A plus B plus D plus E. नोट किया जाए, आई सेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन सब्जेक्ट A. अगर मैं इसी चीज को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करूं और मैं आपसे पूछूं, बताइए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन सब्जेक्ट A ओनली. मैं इसको चेंज कर देता हूं, सब्जेक्ट A ओनली, देन द आंसर इज A. है ना, ये समझ में आना चाहिए हमें कि समवन सेज समवन इज पास्ड इन सब्जेक्ट A. सब्जेक्ट A में पास होने का मतलब है कि वो बंदा A में पास हुआ है, किसी और में पास हुआ नहीं हुआ, इट इज इमटेरियल फॉर अस. व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस इज द स्टूडेंट हैज पास्ड इन सब्जेक्ट A. दैट इज द मीनिंग हियर. सो देयरफॉर द आंसर इज A plus B plus D plus E. बट वेन समवन सेज कि भैया कोई बंदा सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम में पास हुआ है, ठीक है ना, विच इज ही सेइंग कि भैया द स्टूडेंट हैज पास्ड इन सब्जेक्ट A ओनली, देन आई एम रेफरिंग टू दिस रीजन. मैं कौन से रीजन को रेफर कर रहा हूं? ओनली दिस.
ठीक है, विच इज ओनली इन सब्जेक्ट ए। ये बात समझ में आ रही है सबको? सो दैट इज दिस नंबर आई एम टॉकिंग अबाउट ए। उसी लॉजिक से इफ समवन विल आस्क यू कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड इन सब्जेक्ट बी ओनली, सब्जेक्ट बी ओनली इज दिस, सही है, सब्जेक्ट सी ओनली इज दिस, सही बात है। और इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, कोई प्रॉब्लम है किसी के मन में? ग्रेट, हो तो प्लीज बताइए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड इन, यू कैन से टू, मतलब टू सब्जेक्ट्स, दो सब्जेक्ट में पास हुए। रिमेंबर व्हेन आई सेड दो सब्जेक्ट में पास हुए, विच मीन्स या तो दो में पास हुए या दो से ज्यादा में पास हुए। व्हेन आई सेड दो में पास हुए तो दो या दो से ज्यादा उसका मतलब होता है, ठीक है। सो विच मीन्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स passed in two subjects is nothing but B plus D plus E plus F, सही बात है, ठीक है। अब यहां से अगर कोई ऐसा बोले कि फाइंड आउट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन ओनली टू सब्जेक्ट्स, ठीक है, पास्ड इन ओनली टू सब्जेक्ट्स, ठीक है। सो अगर ओनली टू सब्जेक्ट्स लिखा होगा, ओनली टू सब्जेक्ट्स लिखा होगा, देन दैट आंसर इज बी प्लस डी प्लस एफ। उस समय पे ई इंक्लूड नहीं होगा, बिकॉज ई इज टॉकिंग अबाउट, यू कैन से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स। समझ में आ रहा है सबको? ई का मतलब है 3 के 3 सब्जेक्ट्स में पास हुए, ठीक है ना। चलिए वापस समझते हैं इस बात को। A यूनियन बी यूनियन सी इज नथिंग बट, अपने केस में A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, ठीक है। व्हाट इज एन ऑफ ए? एन ऑफ ए इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन सब्जेक्ट ए। सब्जेक्ट ए में पास होने वाले कितने लोग हैं? ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन सब्जेक्ट बी कौन है? बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ, सही बात है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन सब्जेक्ट सी क्या है ये? विच इज डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। फिर आएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन ए एंड बी बोथ, ठीक है, विच इज बी प्लस ई। फिर बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू क्या होगा? ई प्लस एफ। आप देख पा रहे हैं ना, ठीक है। फिर आएगा C intersection A, which is nothing but D plus E, and what is A intersection B intersection C, which is E। अगर आप इसको देखेंगे, समझेंगे, ठीक है, तो आप देखिए ये D plus E यहाँ पे आया, वो यहाँ से कट गया, है ना। ये E plus F आया, वो यहाँ से कट गया। B plus E आया, ठीक है ना। B plus E आया, सॉरी हाँ, E plus F मैंने यहाँ से काट दिया, जो मैंने गलत किया क्या? हाँ जी, ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया यहाँ पे, मुझे करना चाहिए था, ठीक है। दिस इज ई, सो मैंने लेट्स से बी प्लस ई निकाला, तो बी और ई निकाल दिया, ओके, ई प्लस एफ निकाल दिया, सो दैट मीन्स ई प्लस एफ निकाल दिया, ठीक है, एंड डी प्लस ई निकाल दिया, सो दिस इज व्हाट आई एम रिमूविंग, तो ये चला गया। सो व्हाट आर द नंबर लेफ्ट विथ मी? दिस इज ए, डी, बी, सी, एफ, जी और ई, ठीक है। तो ये नथिंग बट ये है ना। सो दैट इज हाउ वी कैन डेफिनेटली प्रूव इट, ओके। सो दिस इज हाउ योर सेट थ्योरी का दुनिया जनरली वर्क्स। वेरी इजी कॉन्सेप्ट, कोई प्रॉब्लमेटिक बातें नहीं है, ठीक है ना। ये बड़ा सिंपल सा दुनिया है। अब इसको हम थोड़े क्वेश्चंस के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि कहानी कैसे चलती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, let us say there are total 200 students in class 11. 120 of them study in mathematics, 50 study commerce, 30 students study both math and commerce. Find the number of students who study math but not commerce, who study commerce but not math, who study math और कॉमर्स, ठीक है। ये सब चीजों को समझने के लिए एक वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं और बहुत तेजी से हम उसका आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। अब वेन डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे ना, तो प्लीज आप ये ध्यान रखिएगा कि मैं कैसे ड्रॉ करता हूं, उसके ऊपर फोकस करिएगा, ठीक है। जैसे
this is total 200 students, so this is universal set. 200 students are studying, you can say, in class 11, so this is class 11. उसमें हमने मान लिया ये मैथ है, ठीक है, और हमने यहाँ पे मान लिया that this is कॉमर्स. ये मैथ है और ये कॉमर्स है, ठीक है. They said 120 of them study in math. तो ध्यान रखना, मैथ बोला तो ये पूरे सर्कल की बात हो रही है, ये पूरे सर्कल की, ठीक है. सो देयरफॉर आई विल पुट 120 यहां पे से बाहर, ठीक है, जो इस पूरे सर्कल को रेफर करता है, ठीक है. 50 स्टूडेंट स्टडी कॉमर्स, ठीक है. सो देयर आर 50 स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग कॉमर्स, ठीक है. 30 स्टूडेंट्स स्टडी बोथ कॉमर्स, यू कैन से, एंड मैथ, ठीक है. सो दोनों स्टूडेंट्स जो स्टडी करते हैं वो ये हो गए आपके 30, ठीक है ना. चलो बढ़िया, ये 30 हो गए. अब ये तो बहुत सिंपल हो गया, क्योंकि ये पूरा सर्कल अगर 50 का है, उसमें से ये जो पार्ट है वो 30 है, तो ऑटोमेटिकली ये जो रिमेनिंग पार्ट बचा, विच इज ओनली कॉमर्स पढ़ने वाले बच्चे, हो गए आपके 20. 20 प्लस 30 मेक्स इट 50. इजी. सिमिलरली ये 120 है, 120 में से ये 30 कॉमर्स भी पढ़ते हैं, तो बाकी बच्चे 90 क्या पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ मैथ, ठीक है. और व्हेन आई डू दिस यूनियन, दैट इज मैथ यूनियन कॉमर्स, सो दैट मेक्स इट टू 90 प्लस 30, 120 प्लस 20 विच इज 140. सो ये दो सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले लोग कितने, 140. आउट ऑफ 200 140 आर हियर, बाकी के 60 कहां है, सो बाकी के 60 इज आउटसाइड. सही है ना, ग्रेट, ठीक है. नाउ दे आर आस्किंग हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडी मैथ बट नॉट कॉमर्स. कितने स्टूडेंट्स मैथ पढ़ते हैं पर कॉमर्स नहीं पढ़ते हैं. सो टोटल स्टूडेंट्स 120 थे जो मैथ पढ़ते थे, ठीक है, पर उसमें से 30 लोग कॉमर्स पढ़ते थे. सो देयरफॉर दिस नंबर इज 9090. सही है, चलो इजी है. नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडी कॉमर्स बट नॉट मैथ. वी नो कॉमर्स पढ़ने वाले टोटल 50 बच्चे थे, उनमें से देयर आर 30 स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग बोथ, दैट इज मैथ एंड कॉमर्स, तो बचे 20 लोग. सो दैट इज दिस नंबर is 20. So there are 20 students who are, you can say, studying commerce but not math. ठीक है. Some of you may find it so easy. I'm sure it is easy. ठीक है ना. पर दोस्तों धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे and I'm going to bring those challenging and very competitive questions. ठीक है. So please be with me. ठीक है, ये ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि शुरुआत बहुत मतलब छोटी छोटी चीजें बतानी है, इसलिए थोड़ा सा स्लो जा रहा होगा ऐसा लगेगा, बट एज यू प्रोग्रेस फर्दर यू आर गोइंग टू गेट वंडरफुल सेट ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है. देन द स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग मैथ और कॉमर्स, सो दे आर सेइंग मैथ और कॉमर्स, सो दैट इज मैथ यूनियन कॉमर्स. नोट किया जाए द वर्ड हियर इज और, नॉट द एंड. ठीक है, एंड होता तो आंसर ही दे दिया इन्होंने कि 30 स्टूडेंट स्टडी बोथ मैथ एंड कॉमर्स. यस और नो. सो हियर इट इज और, सो दैट इज यूनियन. यूनियन स्टैंड्स हियर 90 प्लस 30 प्लस 20 विच मेक्स इट टू 140. सही है, चलो बहुत अच्छी बात है. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर एबल टू गेट दिस आइडिया. लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन. बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है. ये बोल रहा है सेट ए comprise of all 3-digit numbers that are multiple of 5. Set B comprise of all 3-digit even numbers that are multiple of 3. Set C comprises of all 3-digit number that are multiple of 4. How many elements are present in A union B union C? ठीक है, बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन बना दिया. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है बिकॉज नाउ द नंबर्स आर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड. यू विल हैव टू फाइंड आउट दोज नंबर्स. दैट्स द ओनली प्रॉब्लम. सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट इजी है. व्हाट वी नीड इज ए यूनियन बी यूनियन सी. ठीक है, सो व्हाट डू आई नीड इज आई नीड दिस ए, आई नीड बी, आई नीड सी. ठीक है, सो व्हाट आर द इंफॉर्मेशन आई नीड? आई नीड ए union B union C is nothing but n of A plus n of B plus
n of C, then n of A intersection B minus n of B intersection C minus n of C intersection A plus n of A intersection B intersection C. हम ऐसे कर सकते हैं. सही बात है. चलो बढ़िया, बड़ा सिंपल सा काम है. ठीक है, अब एक एक करके ढूंढते हैं. सेट ए, क्या बोला इन्होंने? ऑल 3 डिजिट नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5. ठीक है, सो वी ऑल नो हाउ डू आई गेट n ऑफ a. सो माई सेट a विल बी 100, 105, 110 और ऐसे करते 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 जाएगा 3 डिजिट नंबर. आई विल गो अप टू 995. ठीक है, सो आई हैव टू फाइंड आउट टोटल नंबर कितने हैं. टू डू दिस आई विल गिव यू वन इंटरेस्टिंग मेथड. ठीक है, देयर आर वेरियस वेज ऑफ डूइंग इट, है ना. आपको शायद कुछ पता होगा ये मेथड निकालना. आई एम ऑल्सो गिविंग यू वन मोर मेथड. ठीक है, सो व्हाट यू डू इज, अगर दोनों नंबर इंक्लूसिव है, द फर्स्ट नंबर एंड द लास्ट नंबर विच आर इंक्लूसिव, देन यू डू 995 माइनस 100. ठीक है, और ये 5 का गैप था, डिवाइड बाय 5 करने का, और दोनों नंबर इंक्लूसिव थे तो +1 कर देने का. ठीक है, सो दिस बिकम्स 995 माइनस 100, दैट बिकम्स 895 बाई 5. ठीक है, सो व्हाट इज 895 बाई 5? 895 by 5 is 5 ones are 5. ठीक है, 39, 5 sevens are 35. ठीक है, then you are left with 1 plus this, so that is number is 180. So n of a is 180. This number is 180. Then they say set B comprises of all 3 digit even numbers that are multiple of 3. Even digits multiple of 3. ठीक है, तो you are left with B is equal to, चालू कहां से होगा? 102. ठीक है, और उसके बाद 6 का गैप. ये सर नो, 6 का गैप. सो दैट मीन्स क्योंकि इवन नंबर चाहिए, ठीक है, 3 का मल्टीपल भी चाहिए, तो 3 and 2 दैट इज 6. सो 102 प्लस 6 इज नथिंग बट 108. और ऐसे करते करते इफ आई गो, सो व्हाट इज द नंबर आई एम गोइंग टू गेट इज 996. 996 तक जा सकता हूं मैं. ठीक है, 996 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ, मतलब इट्स एन इवन नंबर, मल्टीपल ऑफ 3 एज वेल. सो सेम लॉजिक, 996 माइनस 102, गैप है 6 का, प्लस 1 इज द नंबर ऑफ यूनिट्स. ठीक है, सो दैट बिकम्स कितना? ये हो गया आपका 4, 9 का 9, एंड दिस इज 894 बाई 6 प्लस 1. ठीक है, सो दिस बिकम्स 6 ones are 6. ठीक है, देन 29, 6 4s are 24, 54, 9 plus 1, so that makes it to 150. So this number is 150. Now C says set C comprise of all 3 digit number that are multiple of 4. Multiple of 4 is very interesting. It starts with 100, next is plus 4, 104 plus 4, 108, और ऐसे करते करते हम जाएंगे, and then we can go up to 996. ठीक है, that is how it is available, multiple of 4. ठीक है, so then once again 996 minus 100 divide by 4 plus 1, so this becomes 896 by 4 plus 1. So this is 4 2s are 8. ठीक है, 4 2s are 8, 4 4s are 16, so this becomes 225. So this number is 225. ठीक है, now what I have to find out is A intersection B. Now what is A intersection B? It says it is multiple of 5 and it is multiple of 3 and 2. That is even number which is multiple of 3 and 2, which is multiple of 6 indirectly. ठीक है, so A intersection B will be multiple of 30. ठीक है, दोनों का LCM 5 और 6 वाला LCM, that's what I have to work on. सही बात है. सो जो नंबर 30 से डिविजिबल होंगे वो दोनों में कॉमन होंगे. ठीक है, ये 5 and 6 है और ये 4 वाला है. ठीक है, सो व्हाट आई नीड इज A इंटरसेक्शन B. A इंटरसेक्शन B में क्या एलिमेंट्स होंगे? 30 का मल्टीपल. सबसे पहला 30 का मल्टीपल चालू कहां से होगा? ठीक है, 3 डिजिट का 30 का मल्टीपल, सो दैट मेक्स इट टू 120. कहां से चालू होगा? 120, वो जो 30 का मल्टीपल है. सही बात है, ग्रेट. और ये 120 कहां तक जाएगा? दिस विल गो अप टू 990. सही है, सो देयर बाय दिस इज 990 माइनस 120 अपॉन 30
प्लस 1 इज द आंसर. प्लस 1 क्यों कर रहा हूं? क्योंकि दोनों इंक्लूसिव है. ठीक है. सो 990 माइनस 120 इज 0, 7 एंड दिस इज 870 by 30 plus 1, so that makes it 2 3 2s are 6. ठीक है. 9 plus 1 30. So there are common number इन दोनों के बीच में is 30. Same is the case 6 and 4 का you can say LCM is 24. ठीक है. 6 and 4 का LCM is 24. So I have to find out the first number, I have to find out the last number, and then I can calculate number मतलब 24 के मल्टीपल कितने हैं. So वो 24 के मल्टीपल मुझे यहाँ चाहिए और यहाँ पे मुझे 5 and 4 20 के मल्टीपल चाहिए. चलो ग्रेट. 24 का सबसे पहला मल्टीपल यू कैन से 100 के ऊपर कौन सा होगा. नाउ आई नो 24 का अगर मैं टेबल करूं 24 1 सा 24, 24 2 सा 48. ठीक है. 48 देखा तो 48 का डबल कर दूंगा तो आई गेट 96 और 96 में अगर मैं 24 ऐड कर लूं तो आई गेट सम नंबर. इजी. सही बात है. सो 96 प्लस 24 मेक्स इट टू 120. सो सबसे पहला नंबर चालू होगा 120. व्हाट इज माय लास्ट नंबर, है ना. व्हाट इज माय लास्ट नंबर. सो आई कैन सिंपली डू 1000 डिवाइड बाई 24. तो मुझे लास्ट जो भी रिमाइंडर बचेगा वो मैं 1000 में से माइनस कर दूंगा और वो मुझे मेरा लास्ट डिजिट आ जाएगा, मतलब लास्ट यू कैन से नंबर आ जाएगा. सो 24 यू कैन से 4 जा 96. ठीक है. सो आई लेफ्ट विथ 40. 24 1 जा 24. ठीक है. सो आई एम लेफ्ट विथ कितना 16. सही ना. सो 1000 माइनस 16, 1000 minus 16 which makes it to 984. So my last number is 984. So 984 minus 120 upon 24 plus 1 is my number of terms. ठीक है. अब आपको लग रहा है कि शायद ये कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा हो रहा है, मतलब मैं समझा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप इसलिए लंबा हो रहा है. बट व्हेन यू नो द एल्गोरिथम इन योर माइंड देन यू विल बी इन अ पोजीशन टू डू एट अ वेरी फास्ट पेस. ठीक है. चलो बढ़िया. सो दिस इज 4, 8 में से 2 गया तो 6 एंड दिस मेक्स इट टू 864 बाई 24 प्लस 1. ठीक है. 24 3 जा 72 है तो बचेगा आपका करीबन 4 144. 24 6 जा, यस 24 6 जा. सो दिस बिकम्स 37. ओके. चलो ग्रेट. 24 6 जा. ठीक है. 144. ठीक है. चलो ग्रेट. दिस इज 37. सेम इज केस 5 and 4 विच इज 20 का मल्टीपल. 20 की कहानी चालू होती है. सबसे पहला नंबर आपका बनेगा 120. ठीक है. विच इज 20 का मल्टीपल. ठीक है. सॉरी नॉट 120, 100. 3 डिजिट बोला है. सो द फर्स्ट नंबर इज 100. ठीक है. और 20 का मल्टीपल में द लास्ट डिजिट वुड बी कितना बनेगा 1000 में से अगर 20 माइनस करेंगे सो वी आर लेफ्ट विथ कितना बनेगा 980. सही है. ठीक है. 980 जो 20 का मल्टीपल है. ठीक है. सो देन दिस इज 980 माइनस 100. सो दिस इज 880 बाई 20 प्लस 1. सो दिस इज 44 प्लस 1 45. सो दिस इज 45. ठीक है. अब दोनों का कॉमन क्या होगा. व्हाट इज दी. तीनों 3 का कॉमन मतलब 5 का 6 का और 4 का. ठीक है. 5 6 4. ठीक है. 5 6 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 60. ठीक है. 5 6 4 का एलसीएम हो गया 60. सो दैट मीन्स ऐसा कोई नंबर जो 60 के मल्टीपल में है. ठीक है. चलो बढ़िया. 60 के मल्टीपल में चालू कहां से होगा. पहला नंबर 120. yes or no. So this starts with 120 and it ends where it will be ending at 960 है. So 990 पे अटकना चाहिए. नहीं. ठीक है. 960 पे अटकेगा. सही बात है. yes 960. So 960 minus 120. So this becomes 4 and this is 9 plus 9 में से 1 गया तो 8. 840 डिवाइड बाई 60 प्लस 1. ठीक है. तो ये हो गया 6. 6 1 12 गुना 6 इज 12. 12 प्लस 3 13. सो दिस नंबर इज 13. कितना नंबर हुआ मिडिल वाला 13. नाउ दिस बिकम्स इजी. सही है. दिस इज 13. अब इसको मैं थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करूं ताकि थोड़ा और बेहतर हो जाए आपके लिए, क्योंकि कुछ रब हो गया था मेरे से. ठीक है. लेट मी राइट इट प्रॉपरली नाउ वंस अगेन.
so that you can see it. I got A के टोटल नंबर मेरे पास कितने हैं? 180. I am getting B के टोटल नंबर मेरे पास कितने हैं? 150. C के टोटल नंबर मेरे पास कितने हैं? 225. फिर A इंटरसेक्शन B मेरे पास कितना है? 30. B इंटरसेक्शन C मेरे पास कितना है? B intersection C. So here is set B set C का, है ना, कॉमन नंबर आना चाहिए था. हमने कहाँ पे लिखा था? ठीक है, वी डोंट रिमेंबर इट, वी क्विकली डू इट वन मोर टाइम. सो B सेट B क्या है? 6 का मल्टीपल, दिस इज 4, तो 6 और 4 का एलसीएम 24. ओ 24 किया था हमने लास्ट टाइम, गलत, 12 करना चाहिए था. ठीक है, सो 12 करेंगे, 864 डिवाइड बाई 12 प्लस 1. ठीक है, सो दैट मेक्स इट टू अराउंड 75. ठीक है, 5 and 4 का करेंगे हम. ठीक है, सो वी आर लेफ्ट विथ हाउ मच? ठीक है, सो ये हमने शायद आया था. ठीक है, 45. ठीक है, और ये सबका कॉमन 5 6 4, कैल्शियम इज यू कैन से 60. ठीक है, सो दिस 960 माइनस 120, है ना, और ये बाई 60 प्लस 1. ठीक है, कितना आ रहा है? इट इज सम अराउंड 15. So this is 15, this is 30, so ये 15 है, ये हो गया आपका 60, ये हो गया आपका 30. ठीक है, और ये आपका 30 प्लस 30 60, टोटल 180 है. ठीक है, सो दिस बिकम्स 120. ठीक है, देन दिस इज 75 प्लस 15 विच इज कितना हो जाएगा? 90. 150 माइनस 90, दिस इज 60. ठीक है, दिस इज 45 प्लस 60, that makes it to 105. so this is 105 माइनस करेंगे. ठीक है, so we are left with 120. ठीक है, अब इन सबका सम करेंगे, then we'll get the answer. yes or no? अपना आंसर यही सब आएगा. so कितना आएगा? 15 प्लस 15 30, 30 प्लस 30 is 60, 60 प्लस 60 is 120, 120 प्लस 120 प्लस 120 which is 360, 360 प्लस 60 is 420. so answer is 420. so this is more of number system का question compared to सेट थ्योरी. बट ठीक है, लंबा कैलकुलेशन, मेहनत वाला कैलकुलेशन, बट इट इज मैनेजेबल. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट वन मोर. ठीक है, अ क्लास इन अ कॉलेज हैज 150 स्टूडेंट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 150, in which all even numbered students are doing CA, whose numbers are divisible by 5 are doing actuarial, whose number are divisible by 7 are preparing for MBA. How many of them are doing nothing? इंटरेस्टिंग सेट ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, समझते हैं. क्लास में कितने लोग हैं? 150. उनमें से देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर डूइंग सीए, देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर डूइंग एक्चुअरियल, देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर डूइंग एमबीए. सही बात है ना? ठीक है, अब ये तो पक्का है कि कहीं ना कहीं, ठीक है, जो से नौकरी वाला काम है वो तो एमबीए ही दे रहा है और कुछ तो दे नहीं रहा है. ठीक है, सीए हो गया, एक्चुअरियल हो गया, कोई मतलब फायदेकारक चीज तो है नहीं. ठीक है, चलो देखते हैं. सो द पॉइंट इज कि ऑल इवन नंबर स्टूडेंट्स आर डूइंग सीए. सो 150 मतलब 1 to 150 इवन नंबर आर 75. देयर आर 75 पीपल हु आर डूइंग सीए, whose number are divisible by 5 are doing actuarial. 150 divided by 5. ठीक है, so that makes it to, you can say 50, sorry, 150 by 5 is 30. 30 are doing actuarial. The numbered which are divisible by 7 are doing MBA. Yes or no? So 150 divided by 7. 7 2s are 14. 7 1s are. So there are 21 people who are doing this. ठीक है, now this is, in other words, question क्या पूछा है? Question पूछा है आपको कि भैया ये 2 का मल्टीपल है, ये 5 का मल्टीपल है और ये 7 का मल्टीपल है. विच मीन्स अब आपको ढूंढना है ये कौन सा? 10 का मल्टीपल, ये आपको चाहिए 35 का मल्टीपल, ये आपको चाहिए 14 का मल्टीपल, और दोनों का सबका कॉमन, ठीक है, बिकम्स 70 का मल्टीपल. Yes or no? ठीक है, दिस इज व्हाट द नंबर्स यू आर इंटरेस्टेड इन.
ठीक है, आई एम श्योर यू विल बी इन अ पोजिशन टू डू इट. टेक अ पॉज, इस वीडियो को पॉज करें और खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करें. फाइंड आउट दिस नंबर्स एंड मूव फॉरवर्ड. सही बात है, आई एम श्योर यू विल डू इट. ठीक है, और अगर आपने कर लिया है देन यू कैन मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सेट ए इज दोज वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. क्या इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर is equal to 25. Now when you say x square plus y square equal to 25, what you see is a equation of a circle. ये क्या है? इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है जिसके अंदर उसका सेंटर है 0 0 और उसकी रेडियस क्या है? रेडियस है उसकी 5. ये आपको दिख रहा है ना? चलो बढ़िया. व्हाट इज बी? बी स्टैंड्स फॉर एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज 144. ठीक है, इसको मैं पूरे 144 से डिवाइड करूं, सो आई विल गेट एक्स स्क्वायर बाई 144 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 is equal to 1. So this becomes an equation of ellipse. समझिए दोस्तों, आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल है ना, सर्कल. इलिप्स होता है कैसे? इलिप्स इज समथिंग लाइक थोड़ा सा फ्लैट, जैसे अपनी अर्थ होती है ना, ऊपर से थोड़ी, ऊपर नीचे से थोड़ी दबी हुई. एग्जैक्टली दैट इलिप्स. ये सुनो, अब ये दोनों का इंटरसेक्शन पूछा है ना, ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी? नाउ यू अंडरस्टैंड कि अगर, है ना, अगर ये 144 है, बराबर है, सो दैट मीन्स ये जाएगा कहां तक? 12 का स्क्वायर है ना, और ये आपका 4 का स्क्वायर है. सो जनरली मतलब अगर इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सो ये जो आपका इलिप्स होता है उसके अंदर ये आपका होता है ए और ये होता है आपका बी. सो दिस इज 12, दिस इज 4 और हमारा सर्कल है 5 वाला. सो दिस इज 5, दिस इज 5. सो ये छोटा सा 5 यूं लगा दूं मैं. सो वी आर लेफ्ट विथ दिस काइंड ऑफ सर्कल. ठीक है ना? तो आप देख पा रहे हैं कि ये कितने पॉइंट पे मिल रहा है? 1 2 3 4. कितने पॉइंट पे मिलेगा? 4 ही पॉइंट पे मिलेगा. नाउ यू शुड नो सर्कल का रेडियस का फंडा. ठीक है, इलिप्स के अंदर उसका जो मतलब मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस है उसका फंडा अगर आपको पता है तो आप बहुत आसानी से इसको कर पाते हैं. सो आंसर इज देयर आर 4 पॉइंट्स. इजी है, चलो बढ़िया, ग्रेट. ठीक है, नाउ वी आर गेटिंग वन मोर क्वेश्चन. ठीक है, इट सेज इन अ कॉलेज ऑफ 300 स्टूडेंट्स. ध्यान से समझना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ठीक है, इन अ कॉलेज ऑफ 300 स्टूडेंट्स एवरी स्टूडेंट रीड्स 5 न्यूज़पेपर्स. ठीक है, एवरी स्टूडेंट रीड्स 5 न्यूज़पेपर्स. एवरी न्यूज़पेपर इज रेड बाय 60 स्टूडेंट्स. नंबर ऑफ न्यूज़पेपर इज व्हाट? ठीक है, नंबर ऑफ न्यूज़पेपर कितने हैं? हाउ डू आई नो दैट? ठीक है, ओके, आई डोंट नो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं. सो आई एम अज्यूमिंग दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एक्स. ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एक्स. एवरी स्टूडेंट नोट किया जाए, सॉरी, नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, नॉट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो पता ही हमें, नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, extremely sorry, number of newspapers are x. ठीक है, now we know that every newspaper is read by 60 students. So total कितनी रीडिंग हो रही है? So that is 60 into x is the every newspaper is read by 60 students. ठीक है, there are how many students? 300 and every student reads 5 newspaper. ठीक है, so if this are the total number of reading divided by 300, if I do, I will get 5. है ना? Every student, this is number of students, this is total number of newspaper reading divided by total number of students, so this will give me number of newspapers. Easy हो गया. ये ना बड़ा अच्छा रिप्रेजेंटेशन है, इसको अगर आप समझ पाए ना तो फायदा होने वाला है. ठीक है, so this is 60x is equal to 300 into 5. So therefore x is equal to
300 into 5 by 60, ठीक है, this is 5, so there are 25 number of newspapers are there. सही है, चलो बहुत अच्छी बात है. अब हम चलेंगे और ये बात करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमा. बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मिनिमा एंड मैक्सिमा ऑफ वेन डायग्राम. let us say I know that you can say there are two subjects, for example, which is basically math and another subject is physics. ठीक है. Now I know that there are some percentage of students who passed in math. कितने लोग पास हुए? Let me assume, है ना, I'm just taking some number, है ना, I'm taking just some random number. ठीक है. Let us say 70% students are passed in math. ठीक है. And you can say there are 80% students who are passed in physics. Obviously, total universal is 100%. There are 70% students who are passed in math. There are 80% students who are passed in physics. ठीक है. Now, if I do M union physics is equal to, that is number of M union physics is N of M plus N of P minus N of M intersection P. ऐसा होगा. सही बात है. Now, we all understand कि भाई ये जो you can say M union P है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है? मैक्सिमम. दिस कैन गो टू अ मैक्सिमम ऑफ 100%. पर ये 100% से कम भी हो सकता है. यस और नो? ठीक है ना, ये 100% से कम भी हो सकता है. ठीक है. ये रिड्यूस होते होते कहां तक जा सकता है? M यूनियन P मतलब यूनिवर्सल सेट है. यूनिवर्सल सेट मतलब क्या हो गया कि जिसके अंदर फिजिक्स और यू कैन से मैथ दोनों के बच्चे आ गए. ठीक है. तो ये मैक्सिमम इतना है. इसका मिनिमम क्या होगा? अब मिनिमम विल बी डिफाइंड बाय मैथ और फिजिक्स में से कौन बड़ा होगा. ठीक है. कौन बड़ा होगा? फिजिक्स बड़ा है, सो दिस विल गो टू 80%. यू अंडरस्टैंड कि अगर मैं ऐसा एज्यूम कर लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से इफ आई एम अज्यूमिंग, है ना, इफ आई एम अज्यूमिंग कि मैथ में 70 है, फिजिक्स में 80 है और ये टोटल मिला के 100 है, तो ये मेरा M इंटरसेक्शन P की वैल्यू आ जाएगी मेरी, ये है आपका 150, दिस इज 100. ठीक है. माइनस ये M इंटरसेक्शन P, दिस इज, सो माई M इंटरसेक्शन P इज नथिंग बट 50. पर वहां पे मेरी एजम्पशन क्या है? 100. What is 100? 100 as in I'm assuming कि M union P is 100. ऐसा हो जरूरी नहीं है ना, किसी ने बोला नहीं है. It will be less than against 100 as well. Yes or no? It will be less than 100. So there my idea of maximum and minimum which is coming up. ठीक है. So there my idea of maximum and minimum which is coming up. ठीक है. So I'm assuming, for example, let us say M union P, है ना, M union P को मैं X मानता हूं एंड M इंटरसेक्शन P को मैं Y मानता हूं. सो आई गेट X इज इक्वल टू 70 प्लस 80 माइनस Y. ठीक है. अब ये ध्यान दीजिएगा कि जब मेरे सामने ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के दो पहलू निकलेंगे, है ना. अगर X मैक्सिमम होगा, ठीक है, तब उस समय पे Y मेरा मिनिमम होगा. सही बात है ना. ठीक है. जब मेरा X मैक्सिमम होगा तो मेरा Y उस समय पे मिनिमम होगा. ठीक है. क्योंकि अगर ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम मतलब इसकी वैल्यू मुझे सबसे ज्यादा चाहिए, तो ये तो प्लस है, प्लस में से मुझे सबसे छोटी वैल्यू माइनस करनी होगी, तो मेरा X मैक्सिमम आएगा. सही है. सिमिलरली जब मुझे Y मैक्सिमम चाहिए, मुझे Y मैक्सिमम चाहिए, तो मेरा X मिनिमम होगा. ठीक है. ये दो ही वेरिएबल की बात चल रही है. ठीक है. एक मैक्सिमम, एक मिनिमम. ठीक है. एक मिनिमम तो दूसरा मैक्सिमम. ठीक है. दोस्तों इस चीज को बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, बिकॉज व्हेन आई एम गोइंग टू यूज दिस इन अ 3 वेरिएबल दुनिया, तब आपको इसका एक से भरपूर यूज मिलेगा. ठीक है ना. चलो ग्रेट. सो X इज इक्वल टू 70 प्लस 80 माइनस Y. तो इसके अंदर दो केसेस बन रहे हैं. एक, जब आपका X मैक्सिमम है तब Y मिनिमम है, और जब आपका Y मैक्सिमम चाहिए तो आपका X मिनिमम है. ठीक है. अपने X मैक्सिमम क्या हो सकता है?
So I get x maximum is equal to, है ना, if I get x maximum then this becomes 100. Yes or no? Maximum as in सब कुछ अंदर आ गया. Yes or no? सब कुछ as in पूरा यूनिवर्सल अंदर आ गया. क्या ये पॉसिबिलिटी है? हाँ है. कुछ बोला नहीं है कि कितने लोग फेल हुए, ये बताया नहीं है. So therefore we can assume कि ये पूरा 100 है. What is y minimum in that scenario? So if I put x equal to 100, y is equal to, I'm getting is equal to 50. So y minimum मेरा 50 है. Okay. Now if I need y maximum, what is happening? x minimum. x की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? Now if you see कि यूनियन चाहिए तो अकेला एक सबसे बड़ा जो एक ऐसे सब्जेक्ट में पास हुए बच्चे, वो नंबर ही आपका 80 है. 80 से नीचे तो एम यूनियन पी नहीं हो सकता ना. ठीक है, सही बात है ना, क्योंकि वही सबसे बड़ा है. सो ये y मैक्सिमम कब होगा? ठीक है, जब x मिनिमम होगा. x मिनिमम कब हो रहा है? when x is equal to 80. so if I put 80 here, है ना, if I put 80 in this equation, so what happens? y becomes 70. so मेरा y maximum क्या हो सकता है? 70. मेरा y minimum क्या हो सकता है? 50. so in this scenario I can draw this equation, मतलब this graph for, you can say y minimum. The graph for that could be, this is math, this is physics. ठीक है, ये आपका 70 है, ये आपका 80 है, ये आपका हो गया 50. ठीक है, that's a minimum. this becomes 30, this becomes 20. तो आप देख सकते हैं कि इन सब का सम हो गया 100. but if I draw the graph for this maximum, look at this. ठीक है, what I'm doing is physics is my 80. ठीक है, अब उसी फिजिक्स के अंदर ही मेरा पूरा का पूरा मैथ आ गया. सही है, बराबर है. तो उस समय पे मेरा m इंटरसेक्शन p मैक्सिमम हो गया है, तो ये मेरा मैक्सिमम हो गया है. सो दैट इज 70. सही है ना? ये दो आपको एक्सट्रीम समझ में आ रहा है? इज दैट वेरी क्लियर? वेरी गुड, है ना. दिस इज स्टैंडिंग फॉर मिनिमा मैक्सिमा फॉर टू वेरिएबल. This is standing for minima maxima for two variable. I'm sure you will be in a position to understand same stuff for three variables. Yes or no? So after understanding this for two Venn diagram, we are applying the same concept to, you can say, three Venn diagram. Okay? There are 200 students in the class. ठीक है, and the students are, ठीक है, 70 students pass in physics, 80 pass in chemistry, 60 pass in math. ठीक है, ग्रेट. ठीक है, 35 पास इन फिजिक्स केमिस्ट्री, 30 पास इन केमिस्ट्री फिजिक्स, 40 पास इन मैथ फिजिक्स. ठीक है, एंड देन व्हाट आर वी इंटरेस्टेड इन? वी आर इंटरेस्टेड इन व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग इन ऑल थ्री सब्जेक्ट्स. एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, एग्जैक्टली टू सब्जेक्ट्स, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, एटलीस्ट टू सब्जेक्ट, एट द मोस्ट वन सब्जेक्ट, एट द मोस्ट टू सब्जेक्ट्स. उसका मिनिमम मैक्सिमा करना है. ठीक है, पहले ये मिनिमम मैक्सिमा वाला फंडे को अपन अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. ध्यान से समझना, है ना, बिल्कुल ध्यान रखना क्या सिनेरियो क्रिएट हो रहा है. ठीक है, सो आई एम ड्राइंग हियर, दिस इज यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर आई हैव फिजिक्स, आई हैव केमिस्ट्री एंड आई हैव अ मैथ. ठीक है, now I don't know what is P union C union M. Obviously I know that it can maximum be 200, but what is an exact value? I don't know. ठीक है, but I know this is 70, this is 80, this is 60. That is given. Okay, that is already given. Then physics and chemistry, this is 35. ठीक है, chemistry and chemistry and math. Okay, this is 30 and this is 40. I don't know what is the तीनों तीन का total. Okay, let me assume this is x. ठीक है, and P intersection C intersection M is y. So my equation will be x is equal to 70 plus 80 plus 60, which is नथिंग बट, अगर मैं उसको आपके लिए अच्छे से लिख दूं तो दिस इज
P union C union M is equal to nothing but P plus C plus M, ठीक है ना. So that is P union C union M is X, P is 70, C is 80, M is 60 minus P intersection C, P intersection C is 35, ठीक है, minus C intersection M which is minus 30 minus P intersection M which is 40 plus P intersection C intersection M, so that means it is Y. ठीक है ना, चलो बढ़िया. How do I get this now? So I am in this situation called X is equal to 70 plus 80, 150, 150 plus 60 is 210, 210, 70, 70 plus 35 which is 105, 210 minus 105 is 1, 210 minus 105 plus Y. ठीक है, सही है. Now what am I interested in? I am interested in the maximum and minimum values. Maximum, minimum for what? I know I have to either find out this as max or this as minimum. ठीक है, okay. So to get this max now X, अब यहाँ पे गेम थोड़ा सा अलग है. If I want to get X maximum, Y should be maximum. Yes or no? इक्वेशन यहाँ पे चेंज हो गया ना प्रीवियस वाले केस से. अगर मुझे यहाँ पे x इज इक्वल टू 105 प्लस वाई मिल रहा है और मुझे x मैक्सिमम चाहिए तो y मैक्सिमम चाहिए, और अगर मुझे x मिनिमम चाहिए तो y भी मिनिमम चाहिए. ठीक है ना. चलिए लेट मी टेक वन केस कि y मैं मैक्सिमम लेता हूं. नाउ व्हाट इज y? y इज p इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन m. ठीक है. अब अगर ये मैक्सिमम चाहिए, ठीक है, तो मतलब वी नो दैट P इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन M इज इन अ वे अ सबसेट ऑफ P इंटरसेक्शन C या C इंटरसेक्शन M या P इंटरसेक्शन M. उन तीन में से या इन तीनों तीन का वो सबसेट है. मतलब इन तीन में से, है ना, इन तीन में से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा. समझ में आया ना? ग्रेट. सो दैट मीन्स P intersection M can be either 35, can be either 30, can be either 40, है ना, ये पॉसिबल है. can be either 30, can be 40, है ना, can be you can say 30. इनमें से जो सबसे छोटा होगा वो कॉमन होगा ना. ऑब्वियसली यू कांट गेट कि अगर ये इंटरसेक्शन 40 हो गया है, अगर ये नंबर ही 40 हो गया है तो इन दोनों का समेशन 30 तो हो ही नहीं सकता. तो मिनिमम ये क्या होगा? 30. सो ये वैल्यू हो गई आपकी 30. अगर ये 30 हुआ, अब हम सब कुछ फिल करेंगे. कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए ये समझना. व्हेन आई एम फिलिंग द वैल्यूज, आई एम फिलिंग द वैल्यू, देन वन ऑफ द रीजन विल बिकम 0. ये पक्का है, कोई भी एक रीजन 0 बनेगा. आई डोंट नो विच इज दैट रीजन. नंबर 1. नंबर 2, नन ऑफ द वैल्यू विल गो इन नेगेटिव. ये दो कंडीशन मुझे फुलफिल करनी है. तो ये 30 है, ये 0 है. वेरी गुड, 0 हो गया. ये 10 है, ये आपका 5 है ना. 35 प्लस 10 इज 45. ठीक है. 45 70 माइनस 45 बिकम्स 25. ठीक है. केमिस्ट्री में हो गया 35. 80 माइनस 35 विल मेक इट टू सम अराउंड 45. 40 माइनस होगा, 60 में से 40 चला गया. सो वी आर लेफ्ट विथ यू कैन से 20. ठीक है. ये हो गया मेरा 20. अब ये टोटल सबका सम करूंगा तो दिस इज 70. 70 प्लस 20 90. 90 प्लस 45 इज 90 प्लस 45 इज 135. टोटल 200 है. ठीक है. तो जो बाहर बचे, जो फेल हुए, वो आपके 65 हुए. ये मेरा सिनेरियो कब बन रहा है? जब मैं यू कैन से ये P यूनियन C यूनियन M को मैक्सिमाइज कर रहा हूं. ठीक है ना. ये मेरा मैक्सिमम चल रहा है. So that means if I want to answer any question about maximum, I can. ठीक है. चलो मैं मैक्सिमम का आंसर देता हूं. All 3 subjects में पास होने वाले मैक्सिमम बच्चे कितने हैं? So that number becomes 30. याद है आपको? यहां पर हमने 30 किया था, ये रहा 30. ठीक है ना. चलो बढ़िया. अगला सवाल क्या बोला इन्होंने? एग्जैक्टली एक सब्जेक्ट में पास होने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? एग्जैक्टली एक सब्जेक्ट में मैक्सिमम कितने बच्चे पास होंगे? विच इज 25 plus 45 plus 20. 25 plus 45 which makes it to 50 plus 70, 70 plus 20,
90. So that number is 90. एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स में पास होने वाले,